Good morning, student. Now this is the last video of the lesson. My dear students, I hope that you must have understood the lesson through the video and the notes. Once again, I am going to remind you about the French Revolution. My dear students, we have seen revolution is a mass uprising of people against the ruling system. ठीक है, मीन्स व्हाट when too many peoples है ना mass people go against any ruling system, it is termed as a revolution when it cause change in the society, economic policy and politics of the country is considered as a revolution. So we have seen what was the reason of revolution, that 90% population students of France was under the autocracy who were crushed. ठीक है, that ultimately led the revolution. So we have already discussed these all. We have discussed what was the life of women before and after revolution. ठीक है, one topic that was the remaining students was the slavery system. ठीक है, see students, all the European traders made huge money through the plantation, and for the plantation क्या है, टी, कॉफ़ी, इंडिगो, ये सब का जो खेती वगैरह होता था. ठीक है, तो दे मेड ह्यूज मनी थ्रू द प्लांटेशन, एंड फॉर द प्लांटेशन स्टूडेंट्स दे नीड लेबर, चीप लेबर. ठीक है, दैट हैव क्रिएटेड slavery system in Europe. Since all the European traders were much interested in plantation, that is why they need labor commercially who are available at very cheap rate. That is why the slavery system students developed in Europe. ठीक है, तो it was a triangular slave system students between Africa, Europe and America. ठीक है, and these all continent है ना had much students about the plantation. That is why the European traders students brought the black indigenous peoples, ठीक है, from the interior part of the forest from South Africa. ठीक है, तो साउथ अफ्रीका निग्रोज, वो लोग को निग्रोज बोला जाता था. तो यूरोपियन ट्रेडर्स क्या करते थे कि साउथ अफ्रीका के इंटीरियर पार्ट से, फॉरेस्ट से, जंगल से, है ना, दे स्टूडेंट्स ब्राउड द ब्लैक एज ए स्लेव एंड दे वेयर सोल्ड इनटू द मार्केट लाइक द गुड्स. और उन लोगों को सामानों की तरह बेचा जाता था बाजारों में, जैसे हम सामान खरीदते हैं. ठीक है, एंड ऑल प्लांटर्स स्टूडेंट्स हु मीन्स परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ प्लांटेशन, है ना, परचेज दिस स्लेव एंड एम्प्लॉयड देम इन प्लांटेशन फील्ड. तो इट वाज ए मच बेनिफिशियल ट्रेड ऑफ यूरोप स्टूडेंट्स. ठीक है, दिस ब्लैक पीपल स्टूडेंट्स सर्व एज ए स्लेव हेरिडिटेरियस स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इट हेल्प देम टू मेक मच मीन्स स्टूडेंट्स प्रॉफिट थ्रू द प्लांटेशन. दैट इज वाई slavery system was not abolished. It was shortly abolished students at the period of Robespierre. Slavery system was abolished in France, but once again when Napoleon Bonaparte come into the power, है ना, when Napoleon Bonaparte students come into the power, it reintroduced slavery system because it was more needed for the economic growth of Europe. यूरोप के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्लेवरी सिस्टम बहुत आवश्यक था, इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट ने स्टूडेंट्स इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया. स्लेवरी सिस्टम स्टूडेंट्स वाज ओनली रिमूव्ड, है ना, इन 1848 रिवोल्यूशन दैट वी हैव टू डिस्कस इन 10th क्लास. तो 1848 का क्या रिवोल्यूशन था यूरोप में, ये हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे क्लास 10th में. ठीक है, तो आई होप दैट स्लेवरी सिस्टम यू मस्ट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स दैट इट वाज ए बेनिफिशियल मीन्स ट्रेड सिस्टम that existed between Africa, Europe and Africa. European traders brought the indigenous black peoples, Negroes, from the interior part of the African forest and they were sold into the market. Students. ठीक है, तो usually it was very beneficial. That is why it could not be abolished in France. It only abolished in 1848 revolution that we have to discuss in class 10. ठीक है,
तो दैट वाज द फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टूडेंट्स. ओके, एंड इफ वी सी व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टूडेंट्स. फ्रेंच रिवोल्यूशन का इम्पोर्टेंस क्या था, इसकी सिग्निफिकेंस क्या था स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अगर आप सिग्निफिकेंस देखते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट इन होल यूरोप स्टूडेंट्स मोनार्कियल सिस्टम कम इनटू स्टूडेंट्स एट अ स्टेक और कम टू द चैलेंज्ड. सबसे पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि पूरे यूरोप में मोनार्कियल सिस्टम के खिलाफ जो है वो एक मतलब स्टूडेंट्स आवाज़ उठना शुरू हो गया. ठीक है, पहला कारण तो ये हो गया. ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो सेंस ऑफ नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद का उदय होता है, एक राष्ट्र का जो निर्माण होता है, वी ओनली सी आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन. तो ये फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद ही हम लोग को दिखाई पड़ता है कि राष्ट्र का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ. पीपुल स्टूडेंट्स कैम टू नो अबाउट देयर ओन मदर लैंड. लोगों को अपने मदर लैंड, देखिए हम अब आपको सिग्निफिकेंस बता रहे हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या था, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन. ठीक है, तो सिग्निफिकेंस में क्या देखते हैं स्टूडेंट्स आप, कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप देखिए कि मोनार्कियल सिस्टम स्टूडेंट्स कम टू बी चैलेंज्ड देयर. पीपुल बिगेन टू आस्क अबाउट द रूल ऑफ मीन्स पीपुल इन द कंट्री. पहला सिग्निफिकेंस ये है. सेंस ऑफ नेशनलिज्म, सेंस ऑफ नेशनलिज्म स्टूडेंट्स वी सी ओनली आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन. तो जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो भी हम फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद ही देखते हैं. ठीक है, वर्ल्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी कम इनटू द वर्ल्ड ओनली आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन. जो आप डेमोक्रेसी आज देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द कंट्री स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक, तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी स्टूडेंट्स इमर्ज्ड ओनली आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन. ठीक है, तो जो आइडिया था हमारा डेमोक्रेसी का, ये डेमोक्रेसी की आइडिया हमें फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद ही दिखाई पड़ती है स्टूडेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स दैट वी सी द पीपुल राइट. पीपुल राइट्स स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट्स दैट पीपुल वेयर गिवन सम मोरल राइट कम इनटू द वर्ल्ड ओनली आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन. तो ये फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद ही आया. एंड आउट ऑफ यूरोप स्टूडेंट्स इफ वी सी द कॉलोनियल पावर, द कॉलोनियल पावर also began to be challenged, है ना. तो it inspired, French Revolution students inspired the people of whole world to go against the monarchical system and establish the rule of people. तो that was the significance of the French Revolution students. ये हमारा फ्रेंच रिवोल्यूशन का सिग्निफिकेंस है. ठीक है, तो इफ यू सी थ्रू आउट ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स, है ना, तो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. इट इज़ बिकॉज इट शेप द वर्ल्ड डेमोक्रेसी थ्रू द फ्रेंच रिवोल्यूशन. दैट इज़ वाई वी हैव टू स्टडी द फ्रेंच रिवोल्यूशन, है ना. तो इट्स सिग्निफिकेंस स्टूडेंट्स इज ए लॉट्स, बहुत सारा इसकी सिग्निफिकेंस है. ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड द चैप्टर थ्रू द वीडियो. दिस वॉज द लास्ट वीडियो ऑफ द लेसन. ठीक है, एंड देयर इज़ द 2 days रिमेनिंग स्टूडेंट्स. 2 दिन अभी भी आपके पास हैं. ठीक है, आज थर्सडे है. ठीक है, आप थर्सडे को ये वीडियो देख रहे हो. फ्राइडे सैटरडे 2 दिन आपके पास है इसको फेयर कंप्लीट करने के लिए. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग, आपको पहले ही मैंने कहा था कि फेयर बनाते समय सब डेफिनेशन जो है, जैसे वेस्टिले है, रिवोल्यूशन है, ओल्ड रिजीम है, स्टेट जर्नल है, तीथे है, टैलीज है, ये सारा डिफिनेशन स्टूडेंट्स आप लिख लोगे. टोटल डिफिनेशन इसको स्टूडेंट्स आपको लिख लेना है. ठीक है, ताकि ये इजी वे में आपको याद हो सके. और इसके बावजूद अगर आपको लगता है कहीं पे कोई समस्या, कोई ट्रबल इस चैप्टर से संबंधित, तो आप हमसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स. और फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन टाइम है. सैटरडे को मैं कुछ MCQ देने की कोशिश करूँगा इस चैप्टर का, आप उसको सोल्व करेंगे, है ना. ये 2 दिनों में आप फेयर कॉपी जो है स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लेंगे. जहाँ पर किसी को कोई दिक्कत होती है आप हमें कॉल करेंगे स्टूडेंट्स. ओके, हैव ए नाइस डे.